Students, today I am going to start a revision of one topic from your unit 2, that is composition, paragraph writing. So, how to write a paragraph, what is a paragraph, what is the meaning of paragraph, and what points we have to keep in our mind before writing a paragraph. What is the length of a paragraph, or how many words required to write a paragraph. All these things we see in this chapter. Okay. Now first is, what is a paragraph? Here the definition is also given. A paragraph is a short composition which consists of a number of sentences linked together, all relating to one topic. पैराग्राफ क्या होता है? किसी एक टॉपिक पे कुछ लिखना इन अ वन पैराग्राफ, जिसमें जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो नंबर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से. ऐसा नहीं है कि एक लाइन, वन सेंटेंस जो है वो मैंने कुछ और लिखा एंड नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो फर्स्ट या उस पैराग्राफ से लिंक ना हो. सो द कंपोजिशन विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेंटेंसेस लिंक्ड टुगेदर, वो सारे लिंक्ड होंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे. नाउ what are the some points which we have to keep in mind before writing any paragraph? In a paragraph, sentences should be written in a proper order. जो भी sentence होगा वो proper order में होगा. No sentences or thought should be repeated while writing a paragraph. किसी भी sentence को या thought को हम repeat नहीं करेंगे. Suitable linking device should be used to make a paragraph effective. जो भी sentence होगा वो linked होगा एक दूसरे से. ये नहीं कि ऐसे sentences लिख रहे हैं जिनका एक दूसरे से कोई link ही ना हो. Every sentence of a paragraph must be closely connected with the topic. जो भी sentence होगा वो must be टॉपिक से कनेक्टेड होगा. टॉपिक से हट के हम चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, और वो एक सीक्वेंस में लिखना होगा, इन अ सीक्वेंस मैनर. पैराग्राफ शुड नॉट बी अनयूजुअली लेंथी. इसका जो लेंथ होगा वो अनयूजुअली बड़ा नहीं होगा. एज द नेम पैराग्राफ राइटिंग, हमें पैराग्राफ को एक पैराग्राफ में लिखना होता है. नाम ही है पैराग्राफ, सो वी हैव टू राइट इट इन अ पैराग्राफ. वर्ड्स की बात करें तो मैक्सिमम इसके लिए हम 100 वर्ड्स ले सकते हैं to write the paragraph. बहुत सारे questions में it was already mentioned that the write the following paragraph in 100 words, या simply ये given है कि write a paragraph on this topic. Okay, now here some examples or some topics are given on which the paragraphs are written. आप लोगों ने इसको पहले ही पढ़ा होगा, लाइक दिवाली, ताजमहल, एलिफेंट. आप कोई भी ले सकते हो एनी पैराग्राफ. अगर एक पैराग्राफ को रीड करके देखें किस तरह से इसमें जो डिफरेंट सेंटेंसेज है वो लिंक्ड है एक दूसरे से, कैसे इसको बिगिन करना है एंड हाउ वी हैव टू एंड द पैराग्राफ. क्योंकि किसी भी पैराग्राफ की, ऐसे की या किसी क्वेश्चन आंसर्स का एक इंट्रोडक्शन होता है, स्टार्ट करने का तरीका होता है, एंड देन कंक्लूजन पार्ट होता है, कैसे उसे एंड करना है. ये सारे लिंक्ड होने चाहिए. सो फर्स्ट आई एम रीडिंग द टॉपिक दिवाली. दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट. इट marks the beginning of winter. It is one of the most important festival of Hindus. It generally falls in the month of October or November. It is celebrated in honor of Lord Rama's return to Ayodhya. People clean their houses, shops and other buildings. They whitewash or paints their houses. Bazaars are decorated. People wear new clothes on this day. People exchange sweets and good wishes. At night, lamps are lit. The Hindu worship Lakshmi, the goddess of wealth. Lakshmi and Ganesha are worshipped together by the people in Diwali. So, in this paragraph, we are seeing that all the sentences are linked together, and here is a starting point, और यहाँ पे एक conclusion है जिससे कि एक किसी टॉपिक को हम एंड कर रहे हैं.
इस टॉपिक में वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मेंशन हैं जो दिवाली के बारे में हैं। लिखने को तो इस पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट वी हैव टू राइट व्हाट, वी हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन दिवाली। तो इसमें दिवाली से रिलेटेड जो मेन चीज़ें हैं बस उसे ही इसमें लिखना है। तो वो सारी मेन चीज़ें जो दिवाली में होती हैं, ऑल आर मेंशन इन दिस ओनली वन पैराग्राफ। ओके, नाउ some important points which we have to keep in our mind before writing a paragraph. What are they? Each of these paragraph begins with a topic sentence. आप देख रहे हो कि हर जो ये 1, 2, 3 पैराग्राफ्स है वो एक टॉपिक से स्टार्ट हुआ है, विच इज़ रिटन इन बोल्ड लेटर्स। ये सारे टॉपिक्स किस में लिखे हुए हैं? दे ऑल आर रिटन इन बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ। अगर आप किसी चीज़ पे पैराग्राफ लिखते हो और उसकी हेडिंग नहीं, सॉरी टॉपिक उसकी नहीं लिखते हो, देन आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द टॉपिक, कौन सा टॉपिक है इसका, एंड उसको लिखना किस में है? बोल्ड लेटर्स में लिखना है। दीज पैराग्राफ नरेट्स एंड डिस्क्राइब समथिंग। ये जो पैराग्राफ होगा वो द एलिफेंट के बारे में नरेट करेगा या उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा। सो दे आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव पैराग्राफ। वो अगर उस तरह का पैराग्राफ है तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव पैराग्राफ कहते हैं, जो उसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। सो दीज आर द सम पॉइंट्स विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। Now, here some works are given, some topics given, and the question here is write the paragraph not more than 100 words. So the word limit is given for you, and these are some topics on which you have to write the paragraphs, and the paragraph must not be more than 100 words. Here also some examples are given. एंड हियर एंड द लास्ट क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। यहाँ पे वर्ड्स की लिमिट नहीं दी हुई है, बट एक पैराग्राफ लिखना है तो वो एक पैरा में ही आना चाहिए। इट मीन्स आप 100 से ज़्यादा वर्ड्स ना लिखने की कोशिश करो। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डन आवर दिस टॉपिक पैराग्राफ राइटिंग, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। थैंक यू।